Hello, my dear students. I am S.K. Nayak, Kendriya Vidyalaya COD Jabalpur. Today I am again in front of you going to define about the chapter 2 polynomial class 9th. But in my previous class I verified very well three identities. First, a plus b whole square. Okay. So we verified 2ab plus b square, a square plus 2ab plus b square. एल्जेब्रिक वे में हमने a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 टाइम प्रोडक्ट किया इसका, तो भी हमारा रिजल्ट आया था यही सेम. एंड देन वी वेरीफाइड थ्रू द एक्टिविटी, सो रिजल्ट वाज सेम. ओके. सेकेंड आइडेंटिटी वाज a माइनस बी होल स्क्वायर. इट वाज a स्क्वायर माइनस 2ab then plus b square. Last identity was a plus b and a minus b का जो प्रोडक्ट है that was a square minus b square. I want to say about this identity again. When we factorize a square minus b square, it will be a plus b into a माइनस बी. सो क्वेश्चन को रेस करने का एक टू वे बन गया कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? सो फैक्टर्स आर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. In our previous class we discussed about these three identities, but now today इस स्क्वायर में एक आइडेंटिटी और रह गई थी, that was a plus b plus c whole square. In this identity we have three quantities, three terms, a, b and c. So if you multiply a plus b plus c whole square twice, a plus b plus c, a plus b plus c प्रोडक्ट करेंगे, सो प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab देन प्लस 2bc एंड लास्ट आ जाएगा 2ac या 2ca. ओके. The product of a plus b plus c whole square, a plus b plus c into a plus b plus c twice टाइम प्रोडक्ट जो है वो एनसीईआरटी में वेरी वेल बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है. बट टुडे आई एम गोइंग डिस्कस विद यू हाउ टू वेरीफाई दिस आइडेंटिटी थ्रू एन एक्टिविटीज. ओके. सो लेट मी स्टार्ट द एक्टिविटी. द एक्टिविटी के लिए मुझे चाहिए एक स्क्वायर सीट. राइट. स्क्वायर सीट इस टाइप की, ये देखिए, this is the square sheet. Okay. And this square sheet divided into three parts. Part 1, this is I take A. Part 2, this is I want to take part B, यहाँ से यहाँ तक, and this is C. So this square sheet from AB divide into three parts, A, B and C. So what is the total length of AB? It is A plus B plus C. Okay. So this is a square. Each side will be A plus B plus C. So each side will be A प्लस बी प्लस सी. ये साइड भी हमारी क्या हो जाएगी? ए, यस, देन बी और देन सी. नाउ टेल मी, दिस इज ए स्क्वायर एंड ईच साइड डिवाइड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, थ्री पार्ट्स. A is greater than B and B is greater than C is the smallest. अब आप इधर से राइट से भी स्टार्ट कर सकते हो, A B C. करेक्ट.
we draw 3 lines, right? First, second, so इस 3 लाइंस में इसकी डिवीजन क्या होगी? ये एक स्क्वायर बनेगा, ये आपका एक रेक्टेंगल बनेगा, ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा। बट अब हम इधर से हॉरिजॉन्टली ये लाइन ड्रॉ करेंगे सेम मेजरमेंट की जो हमने ऊपर से किया था। जैसे ये ए हो गया तो ये भी देखिए ए है, तो जितना ये बी लिया हमने उतना ही बी हमको इस साइड पर लेना है, राइट? और रिमेनिंग पार्ट आपका जो सी है वो आपका ये सी हो जाएगा, ये हो गया सी, करेक्ट? तो इस स्क्वायर की ईच साइड कितनी कैसे मेजर करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एंड ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट? नाउ स्टूडेंट टेल मी what is the area of this square? Number 1, a square. Okay. What is the area of this rectangle? It is AB. What is the area of this rectangle? C into A. AC या CA. इधर आ जाइए. What is the area of this rectangle? A into B. What is the area of this square? Because each side is B, so it is B square. What is the area of this rectangle? Length is B and breadth is C, BC. इस पर आ जाइए. What is the area of this rectangle? This one. A into C या C into A. What is the area of this rectangle? B into C. And last is the square, each side C, so it is C square. Tell me, these are the part of this square, correct? And each side of this square is A plus B plus C. So what is the area of this square? Area of this square is A plus B plus C. Side square में क्या हो जाएगा? A plus B plus C का होल स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, सो इट विल बी A plus B plus C होल स्क्वायर. नाउ प्लीज कंबाइनिंग ऑल दीज 3 पार्ट, इनको एक साथ करना है, तो बताइए फर्स्ट क्या हो गया? A स्क्वायर, सेकेंड क्या आ गया? प्लस B स्क्वायर, थर्ड क्या आ गया? प्लस C स्क्वायर, राइट? ओके, सो फोर्थ पार्ट में हम क्या लेने जा रहे हैं? प्लस ए बी एंड ए बी. हाउ मेनी ए बी? 2AB. ओके, नाउ BC, so it is 2BC, and last one of these it is 2CA. बताओ बच्चों, ये कंप्लीट वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? एक सिंगल स्क्वायर शीट से जिसे हमने ABC पार्ट से डिवीजन स्टार्ट किया इस पैटर्न पर, और जब हमने इस पूरे स्क्वायर का एरिया इस स्क्वायर के ईच पार्ट्स के सम के इक्वल किया, तो हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई. A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC एंड 2CA. बट कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये कैलकुलेशंस के अलावा भी कोई वेरिफिकेशन का आइडिया है क्या? यस, मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले इस स्क्वायर को डिजाइन किया कुछ इस तरह से. ये देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? A square, correct? Then I design this square. See, each side B. What is the area of this square? B square. Then third square मेरा क्या है? Each side C. Yes, ये हो गया. So now I have 3 square in this square. So इसका एरिया क्या हो जाएगा? C square. What is the area of all these 3 square? A square plus B square plus C square. Correct? Now what will be the area of this rectangle? Let me tell you. Yes,
ईच साइड ये ए है और ये बी है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू बी, ए बी. What will be the area of this rectangle? Yes, A into B, length into breadth, AB. Next, what is the area of this rectangle? This is also length into breadth. Yes, ये लीजिए, ये हो जाएगा हमारा A इंटू सी या C इंटू A. same area, C into A. Yes, yes. And last, this is the rectangle, this is also rectangle, same measurement. So इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी लेंथ और दिस इज योर ब्रेथ. सो इट विल बी BC, लेंथ इनटू ब्रेथ. सो ये भी आपका क्या होगा, BC, length into breadth. Now tell me, what is the area of this whole square? It will be A plus B plus C का whole square, side into side. Then how to verify it? It will be equal to the A square plus B square plus C square plus 2AB 2BC and 2CA, right? So this is very famous identity in class 9th, so you can verify in very easily. अब आपसे अगर एक्टिविटी कॉपी के लिए आपके टीचर्स कहते हैं तो आप इनके लिए वही एक सिंपल सा प्रोसीजर अडॉप्ट करिए. जो आपकी एक्टिविटी कॉपी है उसमें properly you write the objective में क्या होगा, to verify the identity this, and then you write the material required, you see glue, sheet, colored sheet, okay, sketch pen, geometry box, etc. and method of construction आपने देख ही लिया है, correct. then इसको verify demonstrate कर दीजिए. then you write the conclusion, hence verified the identity A plus B plus C whole square. और सबसे important point क्या है कि जब आप इसको A की वैल्यू और B की वैल्यू लेकर के इस तरह से, सपोज आपने अगर A की वैल्यू ले ली कितना 3 सेंटीमीटर, B की क्या ले लिया आपने 2 सेंटीमीटर और C क्या ले लिया 1 सेंटीमीटर. तो जो हमारा ओरिजिनल स्क्वायर था ये इसकी साइड क्या हो जाएगी कंप्लीट, 3 + 2 5, 5 + 1 6, ये 6 हो जाएगा. तो इसका एरिया क्या होगा, what will be the area of this square? It will be 6 into 6, side into side 36 square unit हो जाएगा, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके, then you can verify easily by finding the area by this square, then 2AB, then 2BC, then 2CA. Understand? So please learn today this identity, very important. और some students, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ. बोलते हैं सर आपने प्रीवियस क्लास में हमको सिखाया था कि व्हाट इज द A plus B plus C whole square. Yes, it is A plus B plus C whole square is equal to. अब इसको बच्चे कैसे अप्लाई करते हैं, सर A plus B मैं एक यूनिट कंबाइन करके बना लेता हूँ और देन इट विल बी C स्क्वायर. ये देखिए, अब इसको वो लिखेगा A और इसको लिखेगा B और यहाँ पर अप्लाई कर देगा A plus B का होल स्क्वायर. और A की वैल्यू जब यहाँ A plus B आएगी A स्क्वायर में तो इसको भी ओपन करेगा और ओपन करते करते जो A plus B plus C होल स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA. वेरी गुड. आपको क्या है, ब्रेन को एक्टिव रखना है और सो मैनी वेज आर देयर टू कंप्लीट द आइडेंटिटीज और टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन. ओके, बट दिस इज द अलजेब्रिक वेरिफिकेशन. ओके, सो नाउ आई थिंक you are confident about this identity. So now let me take second identity of this chapter. और वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन मेरे पास इस समय वुडन ब्लॉक्स नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक नया ट्रीटमेंट सोचा है कि मैं आपको डायरेक्ट उसको क्लियर कर दूं.
एक्टिविटी वाले सिस्टम से। ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, व्हेन यू आर गोइंग टू वेरीफाई द क्यूबिक आइडेंटिटीज, फर्स्ट है a प्लस बी प्लस सी होल, a प्लस बी होल क्यूब। ओके, ये देखिए फर्स्ट है आपकी a प्लस बी होल क्यूब। अब इस क्यूब की वजह से हमको, अभी स्क्वायर में हम 2 डायमेंशन चल रहे थे, जैसे ही क्यूब आया तो हम लोगों ने ये देखा यहाँ तो क्यूब है, तो क्यूब में क्या होता है, देखिए ये आपका 2D चल रहा था, और जैसे ही आपका थर्ड साइड इसमें एंटर हो गई कि लेंथ ब्रेथ के साथ, अब इस फिगर में क्या आ गया, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है और हाइट आ गया। आया कि नहीं आया? तो हमें क्या करना चाहिए इसमें कि जब भी कभी हम इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, टू वेरीफाई a प्लस बी होल क्यूब, राइट, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं? फिर इस आइडेंटिटी के लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए, उस मटेरियल में क्या क्या लिखेंगे आप, अरे कोई वुडन ब्लॉक्स ले लीजिए, अगर सीट से करना है आपको तो कोई एक्रेलिक सीट ले लीजिए, कुछ कलर्ड पेपर ले लीजिए। ओके, और अपनी कॉपी में तो जो आप स्केच करेंगे तो आप स्केच कैसे करेंगे मैं अभी बताने वाला हूँ। देन इसके बाद जब आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे या प्रोसीजर लिखेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज रह गई है आपकी, दैट इज कॉल्ड प्री रिक्विजिट्स नॉलेज, राइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? एज क्यूब क्या लिखते हैं, एज क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड होगा ना, एज इंटू एज इंटू एज, इट बिकम एज क्यूब। और प्री रिक्विजिट नॉलेज में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी आपको पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब जैसे ही हम क्यूब पर आएंगे तो यहाँ क्यूबिक यूनिट लिखा जाएगा, और जैसे ही हम वॉल्यूम ऑफ चाहे क्यूब का निकालें चाहे क्यूबॉइड का निकालें, दैट विल बी क्यूबिक यूनिट। सो ये प्री रिक्विजिट नॉलेज होना चाहिए इस एक्टिविटी को वेरीफाई करने के लिए। प्रोसीजर को आप देखेंगे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 की तरह, तो उसे कैसे लेते हैं ध्यान से देखना। अगर हम इस तरह का एक क्यूब ले लें, ये देखिए, ये इसकी ये एज क्या है, a, ये कितनी है a, हाइट कितनी है इसकी a, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, यस a क्यूब। ऐसा ही एक और हमें छोटा सा लेना है, तो मैं लिख देता हूं, अगर इसकी एज a है तो इसकी एज को क्या ले लिया, b, ये हो गया b, और हाइट भी हो गई b। तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या हो गया, एच क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, b क्यूब, होगा कि नहीं होगा? सेम इन दोनों क्यूब्स को लेने के बाद हमें क्यूबॉइड्स चाहिए 3। कितने क्यूबॉइड्स चाहिए, 3। ये देखिए, क्यूबॉइड नंबर 1, क्यूबॉइड नंबर 2, क्यूबॉइड नंबर 3। इन तीनों क्यूबॉइड्स का मेजरमेंट क्या होगा कि जो इसका एज है इस बिगर क्यूब का, ये दैट विल बी a, जो इसका ये एज है, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी क्यूबॉइड की, दैट इज b, राइट। बट इसकी हाइट भी वही रहेगी जो हमारे बिगर क्यूबॉइड की थी। तो बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, a इंटू b इंटू a, सो इट बिकम a स्क्वायर b। सेकेंड क्यूबॉइड हमारा क्या है, दिस इज लेंथ a, ब्रेथ b, सेम मेजरमेंट है, और इसकी हाइट a, इसका भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b। टेल मी अबाउट दिस वन, दिस इज ऑल्सो b, दिस इज a and this is a, so a into b into a, it will be a square b। so now next heading जो हमारी है, नेक्स्ट हेडिंग में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले फाइंड करना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, a क्यूब, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, दैट इज b क्यूब, वेरी गुड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन a b a, how many cuboid are there, 3,
तो इन तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, ऑल थ्री का 3a² b। एनी डाउट, एनी डाउट। नाउ अब इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। लेकिन अभी हमें एक चीज और इसकी हमारी स्टडी में है, अभी हमें इस तरह के 3 क्यूबॉइड चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 3 और चाहिए। लेंथ a, ब्रेथ b और हाइट b। 3, 1 2 3। टेल मी द वॉल्यूम ऑफ दिस 3 क्यूबॉइड। ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, AB² सेम, AB² सेम, AB²। इनका वॉल्यूम क्या था, ऑल थ्री का 3a² b। इन तीनों का क्या हो गया, 3ab², राइट। तो अब आपको इन सभी क्यूब्स को, दोनों को, और इन 6 क्यूबॉइड्स को ऐसे अरेंज करना है, ऐसे। ये देखिए, फर्स्ट आपका जो क्यूब था उसका जो सरफेस है ये वाला, देखिए डार्क वाला, ये इधर आना चाहिए, ओके। और इसके अरेंजमेंट में जो ऑल थ्री का अरेंजमेंट है, देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। ये जो आपके क्यूब्स तीनों आ गए हैं, ये देखिए, ये इधर रखा हुआ है, एक इधर और एक इसके नीचे रखा हुआ है। सो ये क्या बन गया, इसकी एज क्या थी, एक ए, और इसकी ब्रेथ क्या थी, इसकी ये वाली बी। तो बताइए टोटल कितना हो गया, ये a प्लस b। इसको भी देखिए यहां से, ये क्या है a और इतना क्या है b, तो इसकी ये क्या हो जाएगी a प्लस b। चलो इसकी हाइट पर आते हैं। हाइट में यहां से यहां तक ये कितना मेजरमेंट है a, और ये कितना है ये वाला b, तो टोटल कितनी हो जाएगी a प्लस b। अरे भाई ये तो एक ऐसा क्यूब बन गया इन सभी के अरेंजमेंट से कि इसकी ईच एज बिकम a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। सो इसकी लेंथ भी a प्लस बी है, ब्रेथ भी a प्लस बी, एंड हाइट भी। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, दैट इज द एज क्यूब। और एज क्या है, a प्लस बी, राइट। सो इट विल बी a प्लस बी होल क्यूब। तो अब ये देखना है कि वॉल्यूम ऑफ दिस होल क्यूब क्या इन सभी के वॉल्यूम्स के इक्वल है। सो लेट वेरीफाई a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, फर्स्ट इसको लीजिए, व्हाट इज दिस, इसका वॉल्यूम है a क्यूब, सेकंड स्मॉल वाला b क्यूब। इन तीनों क्यूबॉइड्स का देखिए क्या है 3a² b, और लास्ट जो 3 क्यूबॉइड्स हैं इसका क्या हो जाएगा 3ab²। सो आई थिंक we verified successfully a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a² b plus 3ab²। सो इसके बाद जो नेक्स्ट आइडेंटिटी आएगी वो क्या आएगी, नेक्स्ट है हमारी a माइनस बी होल क्यूब। मेथड वही है। इसके बाद इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब को। अब एग्जाम्पल देखिएगा जरा मेरे, ऑब्जर्वेशन अगर लेना है तो हम इन सभी, इसकी एक एज को ले लें कितना 4 सेंटीमीटर, 4 4 4, इसको कितना ले लें 2 2 2, और फिर उस हिसाब से इसमें ए बी की वैल्यू क्यूबॉइड्स में, इन क्यूबॉइड्स में सेटअप करते चले जाएंगे। जब आप वेरीफाई करेंगे इस होल क्यूब का जो वॉल्यूम होगा तो वो वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑल दीज पार्ट्स। अंडरस्टैंड? So it was the verification of a plus b whole cube. Now a minus b whole cube. अब एप्लीकेशन भी कहाँ कहाँ कर सकते हैं इस आइडेंटिटी का, ये भी देख लीजिए। द आइडेंटिटी में बी यूज्ड फॉर calculating cube of a number expressed as the sum of two convenient numbers, maybe. सेकंड, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत बार पूछ लिया जाता है फैक्टराइज इस तरह का फॉर्मेट दे करके, तो इसके 3 फैक्टर आएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, सो मेनी स्टूडेंट्स इसमें ऐसा अप्लाई करते हैं कि इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तो आप ये डायरेक्ट छोड़ के चल देते हैं, जबकि क्वेश्चन क्या है फैक्टराइज। सो यू हैव टू राइट हियर a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ a प्लस बी होल क्यूब।
ये इसका क्या था, एप्लीकेशन था। सो नेक्स्ट हमारी क्या है, a माइनस बी होल क्यूब। वो बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्जन में दी गई हैं, इनको आप बस इसी तरह से अपनी एक्टिविटी कॉपी में डिजाइन करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, प्री रिक्विसाइट नॉलेज, थर्ड पे क्या आ जाएगा, मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके बाद प्रोसीजर या मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे आप इस तरह से सभी का कॉम्बिनेशन करके तो ये हो जाएगा डेमोस्ट्रेशन। और जब आप इसमें ए बी की वैल्यू लेट करके और एक ऑब्जर्वेशन लेना चाहेंगे कि वाकई में हमारा ए प्लस बी होल क्यूब इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो आप वो वैल्यू रख के कर सकते हो। और लास्ट में लिखना है आपको इसका एप्लीकेशन। दैट इज एक तरह का जो ऑब्जर्वेशन किया है आपने वो कंक्लूजन ही हो गया, एंड लास्ट में आ जाएगा आपका एप्लीकेशन। एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी एक्टिविटी बुक है, पुरानी पब्लिश हुई थी, आप उसको जरा एक बार रेफर करेंगे तो आपको बहुत इंजॉयमेंट मिलेगा। बट लेट मी टेक लास्ट एंड नेक्स्ट एक्टिविटी a माइनस बी होल क्यूब। सेम a माइनस बी होल क्यूब में आपको इस तरह का डिजाइन प्रेफर करना है क्यूब का। ये देखिए, ये देखिए, सी व्हाट इज दिस, a माइनस बी, वाई मैं भी बताऊंगा, दिस a minus b, okay, its height is a minus b. See, length a minus b, breadth a minus b, or height be a minus b. So what will be the volume of this cube? Yes, a minus b whole cube, यानी h cube. This is the volume. Same इस तरह के रेक्टेंगल हमको देखना है, लेंथ a, अब आप ग्रिप में लीजिएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इसकी लेंथ a है, ये a है, तो इतना सा पार्ट आपका, ये जो हाइट है इसकी ये क्या है, b है, तो ये भी इसका आपका b हो जाएगा। यानी कि ये स्क्वायर, एक छोटा सा स्क्वायर है, इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, ये इसमें b, क्योंकि टोटल a में से जब ये b माइनस होगा तब ये आपकी ब्रेथ बनेगी यहाँ पर a माइनस बी। तो ये हुआ a माइनस बी, और हाइट क्या हो गई इसकी, ये वाली b। तो आपके पास कितने क्यूबॉइड हो गए, 1 2 3। ऐसे ही 3 क्यूबॉइड्स आपको कंसीडर किए थे आपने a प्लस बी होल क्यूब में। बट इसमें क्या करना है अब आपको, इसमें जैसे ही आप ये a माइनस बी होल क्यूब कंसीडर करेंगे तो जो मैंने आपका इधर से ये क्यूब निकाला था जिसका मेजरमेंट था b b b, तो ये देखिए इसकी लेंथ b, ब्रेथ b और हाइट भी b। ओके, देन वी अरेंज ऑल दीज कंपोनेंट्स, सो फाइनली वी गॉट दिस क्यूब। कैसे, यहां से यहां तक कितना था ये, a माइनस बी, ये देखिए a माइनस बी, ये देखिए यहां से यहां तक। अब स्मॉल क्यूब जो आपने इसमें यहां पर ये दिया है, इसका मेजरमेंट क्या है, b है कि नहीं, करेक्ट। बट यू सी दिस होल लेंथ इज a, हुआ ना, ओके। ये स्मॉल क्यूब्स जो आपके लगे हुए हैं टोटली, अब इसको आपको कंबाइन करना है। अब देखिए मैं कैसे कंबाइन करता हूं इसको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब a माइनस बी होल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो कितने हो गए ये, इसका हो जाएगा लेंथ a माइनस बी, ब्रेथ हो जाएगा a, चलो a, और ये हो जाएगा b। तो 1 2 3 है, तो इसके आगे 3 का इंटू कर दीजिए। अब आप बताइए इसको सिंप्लीफाई करके कि आपका क्या आएगा, और इसका और आप वॉल्यूम निकाल लीजिएगा इस स्मॉल का, इसका वॉल्यूम क्या होगा, b क्यूब। ओके, और अब फाइनली इसको हम कैलकुलेशन के मोड में ले आते हैं। सो जो फर्स्ट आपका क्यूब है
मैं इसको इधर लिख दूँ, यस, इसका वॉल्यूम क्या है, a माइनस बी होल क्यूब। फिर सेकंड हमने जो निकाला था, इसका वॉल्यूम क्या है, 3 इंटू 1 2 3 इंटू a माइनस बी एंड ए बी, ये देखिए ए बी, ओके। और स्मॉल क्यूब कहाँ गया, ये है यहाँ पे, ये इसका वॉल्यूम क्या है, बी क्यूब। अब बताइए, इन 1 2 3 4 और दिस 5, इन सभी के कॉम्बिनेशन से ये बना रिजल्टेंट क्यूबॉइड, बना कि नहीं बना। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, जिसकी ईच साइड, ये टोटल तो हो जाएगा a, इतना सा पार्ट है b, और ये हो गया a माइनस बी, तभी तो ये a और ये भी a, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब। अब देखिए इस a क्यूब के इक्वल क्या वैल्यू होगी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं इसको फाइनल दे रहा हूं टच। ये देखिए, ये a क्यूब इक्वल टू द a माइनस बी होल क्यूब 3a माइनस बी एंड ए बी देन प्लस बी क्यूब, ओके। सो स्टूडेंट्स, फाइनली हमें इस पार्ट्स को वेरीफाई करना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों पार्ट हमारे लेफ्ट में आएंगे, तो हम किसको कैसे लेंगे, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस मल्टीपल 3a इंटू a स्क्वायर बी, 3 माइनस 3, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव जब यहाँ आएगा तो नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3ab स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, फाइनली वी गॉट a माइनस बी होल क्यूब। व्हाट इज a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी, अब इस तरह लिखेंगे, इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बहुत से बच्चे इसको इस तरह से भी फाइनल करते हैं, लिखते हैं माइनस 3ab दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी। इफ यू रिमेंबर लाइक दैट यू डू इट, इफ यू रिमेंबर लाइक दैट देन यू कैन डू दिस। सो स्टूडेंट्स, we completed how many identities, we completed total 7 8 तो हो ही गई होंगी, यस। फर्स्ट क्लास में क्या था हमारा, a प्लस बी होल स्क्वायर, देन क्या था a माइनस बी होल स्क्वायर, देन क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। इसके बाद क्या लिया हमने, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, फिर इसके बाद क्यूब पर आए तो a प्लस बी होल क्यूब, देन हमने क्या लिया, a माइनस बी होल क्यूब। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस क्यूब, राइट। लेकिन इसी वर्जन से a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इन चारों के कॉम्बिनेशन से a क्यूब बी क्यूब, और एक टर्म और आती है c क्यूब माइनस 3abc, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ये कैलकुलेशन अलजेब्रिक कैलकुलेशन से वेरीफाई होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। टोटल मैंने काउंट नहीं किया, बट इन आइडेंटिटीज पर अगर आपका कमांड हो गया पॉलिनोमियल डन, और मैं कहता हूं कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और जब भी आपको लगे कि आपका टाइम खाली है तो ये मत समझना आपको सब कुछ आने लगा है। प्लीज इन आइडेंटिटी को डिफरेंट मोड में, डिफरेंट सिचुएशन की प्रॉब्लम्स में एप्लीकेशन ढूंढिए, और इसमें इतना कॉन्फिडेंट हो जाइए कि अप टू द क्लास 12th अलजेब्रा में अगर आपकी एंट्री सक्सेसफुली होगी तो केवल इन आइडेंटिटीज के स्ट्रॉन्ग होने से होगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। यू कीप रिमेंबर ऑल टाइम प्रैक्टिस योर activities and identities. May God bless you. Thank you very much.